Welcome students. Today we will continue with the first chapter, that is nature and significance of management. We will continue with the middle level of management as we completed top level management in the last session. Today we will continue on page number 6, middle level management. It is said that middle level management is an important link between top level and the bottom level management. टॉप और बॉटम के बीच में लिंक होता है मिडिल लेवल. डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स एंड द एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट. जो भी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर्स. अगर डिपार्टमेंट के सब डिविजन्स भी हैं तो डिविजनल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट फील्ड में एक्सपर्ट्स इंक्लूड होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में. Example, the different departments could be production, sell, purchase, finance, personnel, accounts officer, etc. This level is also known as officers level. उसको officer level इसलिए बोला जाता है कि सारे ही departmental head officers या divisional officers ये level में include हो जाते हैं. Now, what are the functions of the middle level? First is to implement the orders and the instructions that are given by CEO. जो भी सारे top level management में decisions लिए जाते हैं, जो भी सारे orders middle level departmental head को मिलता है, instructions that are given by the top level, उसको implement करवाना is the work of the middle level management or the departmental head. Point number 2, to prepare the budget by each departmental head and present it before the top level management. हर एक departmental head अपने department का budget prepare करेगा और फिर उसको present करेगा top level management में उसके approval के लिए. Once the budget is approved by the top level management, the same budget will be implemented by the department through departmental head. Point number 3, to formulate the policies, rules and structure for the accomplishment of the enterprise objectives. हर एक departmental head officer अपने department से related plans formulate करेगा, policies formulate करेगा, rules बनाएगा, क्या rules follow करने हैं सारे employees को उसके department में, structure बनाएगा, किस तरीके से कौन काम कौन सा करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइड करना है नेसेसरी मेथड, कौन से तरीके से कौन से मेथड से वो अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसको एनालाइज करना है कि जिस तरीके से प्लानिंग किया था, पॉलिसीज बनाए थे, उस हिसाब से काम हुआ है डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज ने काम किया है या नहीं किया है. अगर नहीं हुआ है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव नहीं हो पाएंगे. उसके लिए अप्रोप्रिएट सही मेजर्स लेना और क्राइटेरियन फॉर इट डिसाइड करना कि कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे सो दैट कि जैसा आपने सोचा है, प्लान किया है, वैसा ही काम हो. This is the work of the departmental head or middle level management. Point number 4, to take the necessary steps to increase the efficiency and effectiveness of the departmental activities. Steps लेना, जैसे कि सारे employees का efficiency increase हो, उनको training देना, directions देना और उनकी effectiveness को बढ़ाना. जो भी सारे department के अंदर काम हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से effectively हो, उसके लिए employees का efficiency increase करना through training is the work of the departmental or middle level management. Point number 5, to make the attempt to enthuse the employees of the department. Attempts, कोशिश करना कि employees को या उनके enthusiasm को बढ़ाना, उनके enthusiasm को बढ़ाने के लिए उनको motivate करना कि firm अगर business जो है progress करेगा, firm progress करेगा, profit बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा उनको भी होगा. So they have to be made realize that interest of the firm is the interest of the employees, each and every employee.
Point number 6, to make in to keep in the constant touch with the officer of the other department and establish the coordination. हर एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर को दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ऑफिसर से टच में रहना है, कोऑर्डिनेशन में रहना है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड जो है उसको पता होना चाहिए कि कितना सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन अपने डिपार्टमेंट में इंक्रीज करेगा. तो ये कोऑर्डिनेशन अगर एस्टेब्लिश होगा तो ही ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के अचीव हो पाएंगे. साथ मिलके सारे डिपार्टमेंट को एज अ टीम काम करना जरूरी है. पॉइंट नंबर 7, टू फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सब डिविजन्स. अगर डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सब डिविजन्स भी हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सब डिवीजन क्वालिटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, अगर सब डिविजन्स भी हैं तो उनके फंक्शन को भी फोकस करना, उसके ऊपर भी ध्यान रखना इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. Point number 8, to supervise the working of the department. Get information, provide directions and pass on the information to the top level management. Supervise करना अपने department के workers को, उनके काम को, और information gather करना कि किस तरीके से कितना काम हुआ है department में, और workers को, employees को directions देना. राइट पाथ पे काम हो तो ही ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, तो उनको सही तरीके से काम करने के लिए डायरेक्शंस देना डिपार्टमेंटल हेड ऑफिसर का ड्यूटी है. एंड ये इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट बना के टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना. पॉइंट नंबर 9, टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग द पॉलिसी डिसीजंस. जो भी सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो सारे डिसीजंस जो प्लानिंग करते हुए टॉप लेवल मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उन पॉलिसी डिसीजंस को लेने के लिए मिडिल लेवल को, डिपार्टमेंटल हेड्स को हेल्प करना टॉप लेवल मैनेजमेंट को इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड. वी आर डन विद द level management and the functions of the middle level management, which is the link between top and the bottom level management.